Good morning, students. This session is for class 12th and we are studying chapter 4. Today, our topic is motion of charged particle in electromagnetic field. But, student, yesterday we have completed this topic, that is motion in a magnetic field. Actually, this topic is motion of charged particle in a magnetic field. Okay. So let me revise this topic quickly and then we will start the topic motion of charged particle in electromagnetic field, and then we will discuss about the cyclotron. Okay, so you know about this. It means if a charged particle enter in a magnetic field at perpendicular direction, so the path of the charged particle will be a circle of radius r, you can see here, and this radius can be find out by the formula which is given here. You can see this one is the formula, this one is the formula to calculate the radius of this circle. Okay, now if it is circle, then the required centripetal force is equal to the magnetic force. This one is the magnetic force which is acting on the particle moving in this magnetic field and enters in magnetic field at an angle theta. Okay, so this force, this magnetic force is equal to the required centripetal force. So you can see this one is the required centripetal force, that is mv square upon r, and this is equal to the, this force is equal to this force, magnetic force. Okay, and the result will be this circle of radius r. Now the same particle enter in magnetic field at an angle theta. Let me give you the example by erasing these parts. In this diagram or in this figure, you can see here, this one is the direction of external magnetic field. Okay, and you can see the particle enter in magnetic field along this direction. Suppose this angle is theta, so you can see here the velocity makes an angle theta with the direction of the magnetic field. This arrow represents the direction of magnetic field and this one is the direction of velocity. So you can see here this velocity can be resolved into two components. You can see here one component and this one is the perpendicular component. This one is parallel to magnetic field. So due to this velocity, this particle moves in straight line, whereas due to the perpendicular component it will move on a circular track. So the resultant path will be a helix. Okay, you know about helix, the spring, you have seen springs, so the structure of spring is considered as helical track. Okay, so the radius of this circle of the helix is given by the formula, because the perpendicular component of velocity is v sine theta. So in this formula you can see here this v is replaced by v sine theta. Okay, this v is replaced by v sine theta. So r is equal to m v sine theta upon qb. So you can see here, in normal case, it means when charged particle enter in magnetic field at an angle 90 degree, the radius is directly proportional to the momentum p. This is linear momentum, that is equal to mv. Whereas if this particle enter at an angle theta in the magnetic field, then the radius is proportional to the component p sine theta. Okay, so you can write here r is equal to mv sine theta upon qb. So mv is the momentum and then sine theta. So you can write these things. Now the one of the most important point is pitch. So pitch is the linear displacement traveled by this particle in one complete
revolution or one complete circular turn. Okay, so this linear displacement is given by the velocity that is perpendicular, that is parallel to the field, and the time taken in one complete revolution. So the total pitch is given by, you can see here, pitch is equal to the parallel component into time period, and you can get time period from this relation. This one is omega and this is equal to 2 pi by t. From this you can find out the value of capital T, that is time period, and by putting this value in this equation, and you can replace this V parallel by V cos theta, because the component parallel to the magnetic field is equal to V cos theta. So the total pitch is given by 2 pi mv cos theta by qb, you can see here. Okay, so I hope you understand, and we have revised the topic, that is motion of charged particle in uniform magnetic field. Now let's solve this question. Let's solve this question based on the same topic. Okay, so you can see here example 4.3, that is, what is the radius of the path of an electron? Mass is given 9 into 10 to the power minus 31 kilogram and charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Moving at a speed of 3 into 10 to the power 7 meter per second in a magnetic field of 6 into 10 to the power minus 4 Tesla perpendicular to it. So you can see here, this one is the case in which charged particle enter in magnetic field perpendicular to the magnetic field. And what is its frequency? Then frequency भी निकालना है यहाँ पे, and calculate इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ पे जो एनर्जी उसको केईवी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इतनी होती है, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. ये वैल्यू है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ energy, but it is very small unit. So for microscopic particles this unit is used. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर देते हैं. देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हमको आर निकालना है. मास एंड चार्ज आर गिवन, मूविंग एट अ स्पीड, तो यहाँ पे स्पीड भी गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला which is, ठीक है, perpendicular to it. what is frequency, calculate the energy. तो यहाँ पे आप देखिए, आपको परपेंडिकुलर केस वाले फार्मूले यूज़ करने होंगे. तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर केस में फार्मूला है R इज इक्वल टू एम भी अपॉन क्यू बी. तो यहाँ पे देखते हैं m गिवन है, देन v यहाँ पे 3.7 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 7 गिवन है. देन Q की अगर बात करें, Q भी गिवन है यहाँ पे, चार्ज एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है. इसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं यूनिट्स. तो यहाँ पे देखते हैं जो मास की यूनिट MKS सिस्टम में किलोग्राम है, तो ठीक है. वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में है, तो कोई ज़रूरत नहीं चेंज करने की. यहाँ पे चार्ज भी MKS सिस्टम में है, और टेस्ला में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी MKS सिस्टम में है. तो यहाँ पे सारे जो हमारे क्वान्टिटीज़ है वो MKS सिस्टम में है, तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. देन सारी वैल्यू पुट करने के बाद यू विल गेट, आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट दिस वैल्यू, दैट इज़ 26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, इट विल बी 26 सेंटीमीटर. ओके, नाउ अब तो आपने कंप्लीट कर लिया है ये पोर्शन, यहाँ तक रेडियस आपने कैलकुलेट कर लिया, व्हाट इज रेडियस. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना है. तो फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें हम, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, ओमेगा इज इक्वल टू, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है v इंटू आर, लीनियर वेलोसिटी इंटू रेडियस. तो यहाँ पे v इंटू आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं
2 पाई एफ, ठीक है, 2 पाई एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एफ निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे आप एफ इज इक्वल टू लिखेंगे वी आर, वी इंटू आर अपॉन 2 पाई, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू जो है आपको पता है, v इज इक्वल टू हमारे पास है आर ओमेगा, यहाँ पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पे v अपॉन ये v अपॉन आर है, ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ है, ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे v अपॉन आर, तो v अपॉन आर इज इक्वल टू 2 पाई एफ है। तो यहाँ पे f इज इक्वल टू होगा, f इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई इंटू रेडियस r, ठीक है। तो f इज इक्वल टू वेलोसिटी मतलब स्पीड यहाँ पे ये दिया हुआ है अपॉन 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है, r रेडियस आपने अभी भी 26 सेंटीमीटर कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे सारी वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पे v की वैल्यू 2 पाई और r की वैल्यू लिखते हैं। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 2 इंटू 10 टू द पावर 6 पर सेकेंड। पर सेकेंड जो यूनिट है वो यूनिट है फ्रिक्वेंसी की, तो यहाँ पे इसको हर्ट्ज भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपका आंसर आया 2 इंटू 10 टू द पावर 6 पर सेकेंड, या फिर आप इसको हर्ट्ज लिख सकते हैं, ये देखिए हर्ट्ज में लिखा हुआ है, क्योंकि 10 टू द पावर 6 को मेगा हर्ट्ज मेगा बोलते हैं, तो यहाँ पे आप इसको 2 मेगा हर्ट्ज लिख सकते हैं, ठीक है। 1 मेगा हर्ट्ज इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6, तो उससे आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपने ये फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर दिया। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले इसकी एनर्जी जूल में निकाल लेते हैं। तो आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू हाफ mv², दिस वन इज द काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि ये पार्टिकल रेस्ट में नहीं है इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं हम। दिस पार्टिकल इज इन मोशन विद वेरी हाई स्पीड, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², तो 1/2 m की वैल्यू यहाँ पे 9 इंटू 10 टू द पावर -31 है, और v² मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 10 टू द पावर 7 का 10 टू द पावर 14, तो ये आपका हो गया। ये इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा 40.5 इंटू 10 टू द पावर -17 जूल, ये तो जूल में है। बट यहाँ पे अगर आप देखें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतना जूल है, और आंसर आपको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए इसी में इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, और आपको मिल जाएगा 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको ये फार्मूला याद रखना था ये, ठीक है। और इसके बाद फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई आर, सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, और v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इन फार्मूले का यूज़ करके आपने यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, और उसके बाद क्योंकि पार्टिकल वेरी हाई स्पीड में इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हम। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो यहाँ पे 4 इंटू 10 टू द पावर -16 जूल, या फिर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं आगे हम लोग। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो मोशन मीन्स मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in combined electric and magnetic field, it means you can write electromagnetic field, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक है वेलोसिटी सेलेक्टर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर, तो देखते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है। सो अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करेगा तो उस पर 2 फोर्स लगेंगे, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, Fe एंड
एफ बी। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दोनों फोर्स वर्क करेंगे। तो यहाँ देखिए, यू नो दैट अ चार्ज पार्टिकल क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी इन प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स गिवन बाय द इक्वेशन 4.3। तो यहाँ पे आपको यही इक्वेशन है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज, यहाँ पे देखिए, क्यू ई इन ब्रैकेट ई प्लस वी क्रॉस बी, वेयर एफ ई इज द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एफ बी द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, वी शैल कंसीडर अ सिंपल केस इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर and also perpendicular to the velocity of the particle as shown in the figure 4.7। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कंसीडर कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, और जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो इस केस में ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स होगा, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करें तो ये जो इसकी डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इट मीन्स जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर ये वेलोसिटी वेरिएबल हो, अलग अलग हो, तो किसी पर्टिकुलर केस में ये मैग्नेटिक फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ई को हम लोग लिख सकते हैं ई जे, क्योंकि ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग हमारा यूनिट वेक्टर जे। बी को हम लोग लिख सकते हैं बी के, क्योंकि ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है और जेड एक्सिस के लॉन्ग हमारा यूनिट वेक्टर के है। वी को लिख सकते हैं वी आई, तो यहाँ पे वी आई है क्योंकि वेलोसिटी हमारा आई एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमारा है वो तो वाई एक्सिस पे ही रहेगा, क्योंकि जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे हम लोग चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, सो इस पे इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मतलब जे एक्सिस के अलॉन्ग। और एफ बी जो हमारा है ये क्यू वी क्रॉस बी है, तो वी क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब अगर हम लोग देखें तो भी और बी जिन प्लेन में है, तो भी और बी किस प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में है, भी और बी। तो एफ बी जो होगा ये नेगेटिव, यहाँ पे ये क्या कहाँ है, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर भी क्रॉस बी करेंगे इसका मतलब हम लोग एक्स क्रॉस के कर रहे हैं, एक्स क्रॉस के, ठीक है, एक्स क्रॉस के कर रहे हैं, इट मीन्स आई क्रॉस के कर रहे हैं। तो जब हम लोग आई क्रॉस के करेंगे तो हमको मिलता है माइनस जे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहाँ पे, माइनस जे एक्सिस पे है, मतलब माइनस वाई एक्सिस पे। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो प्लस वाई एक्सिस पे है, ठीक है, और नेगेटिव फोर्स जो है माइनस वाई एक्सिस पे है। इट मीन्स ये दोनों क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है, अपोजिट है। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो हम लोग लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू ई माइनस वी बी जे, इतना लिख सकते हैं। ये नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स है, और हम लोग इस कंडीशन में ये सपोज कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेटर है, दिस फोर्स इज ग्रेटर देन क्यू वी बी। तो यहाँ पे ये रिजल्टेंट निकाल दे रहे हैं। Thus the electric and magnetic force are in opposite directions as shown in the figure, जैसा कि फिगर में दिखा रहा है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब सपोज करते हैं, सपोज वी एडजस्ट द वैल्यू ऑफ ई बी सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेज आर इक्वल। तो हम लोग इस ई और बी को इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाता है। ई बी सच दैट देयर मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेज आर इक्वल, देन द टोटल फोर्स ऑन चार्ज इज जीरो and the charge will move in the field undeflected, and this happens when q e is equal to q v b, and in that case we can write v is equal to e upon b। तो यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे अगर सिर्फ ये b जो फोर्स है, ये एफ बी फोर्स कम हो, मतलब फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लेस देन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये
इसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा और ये ऐसे ट्रेवल करेगा इसके इफेक्ट में। इफ़ दिस वन इज़ ग्रेटर तो ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, मतलब इस पे माइनस वाई एक्सिस का ज़्यादा इफेक्ट होगा। बट इफ़ दीज टू आर इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब इस पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स जीरो है। और अगर किसी भी पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो और वो इनिशियली वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो वो कॉन्टिन्यूसली वी वेलोसिटी के साथ ही मूव करता रहेगा, मतलब ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा और ये कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहेगा। और अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, तो उस केस में भी को लिख सकते हैं E/B। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कंडीशन का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। तो देखिए ये इसका यूज है, दिस कंडीशन कैन बी यूज टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी आउट ऑफ अ बीम कंटेनिंग चार्जेस मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स irrespective of their charges and mass. The crossed electric and magnetic field, crossed means these are perpendicular to each other, so the crossed electric and magnetic field therefore serve as velocity selector. तो इस केस में जो हमारी क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो वेलोसिटी सेलेक्टर जैसी सर्व करती है। Only particles with speed E/B pass undeflected थ्रू द रीजन ऑफ क्रॉस फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए E/B जिस पार्टिकल की वेलोसिटी के इक्वल होगा सिर्फ वही है पार्टिकल्स इस फील्ड में बिना डिफ्लेक्ट हुए ट्रेवल करेंगे। दिस मेथड वाज एम्प्लॉयड बाय J.J. थॉमसन इन 1897 टू मेजर द चार्ज टू मास रेशियो E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इसी मेथड का यूज़ करके थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट में चार्ज और मास का रेशियो फाइंड आउट किया था 1897 में। ठीक है, द पार्टिकल इज ऑल्सो एम्प्लॉयड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। द पार्टिकल दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो एम्प्लॉयड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर में भी इस प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। A device that separates charged particles, usually ions, according to their charge to mass ratio। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है जो सेपरेट करती है चार्ज पार्टिकल्स को, यूजुअली आयंस को, अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, तो ये है वेलोसिटी सेलेक्टर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ट्रेवल करता है, इट मीन्स ऐसे रीजन में जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, तो इन जनरल केस में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रख के चेक करते हैं। तो क्या होगा, उस चार्ज पार्टिकल पे जिसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगाएगा, बट मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाती है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर लगाती है। इसकी डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस केस से हम लोग निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है पॉजिटिव वाई एक्सिस, जबकि हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन है माइनस वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। इट मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो देयरफॉर जो हमारा नेट फोर्स है जिसको हम लोग F इज इक्वल टू Q E-VB बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये तो नेट फोर्स हो गया इस चार्ज पार्टिकल पे। बट अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स फील्ड को इस तरीके से मैनेज करें कि इस चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स है, जो इस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाए, मतलब ये जो F है, दिस F इज ज़ीरो, इफ दिस F इज ज़ीरो तो क्या होगा, आप लिख सकते हैं QE इज इक्वल टू
क्यू भी बी, या आप लिख सकते हैं ई माइनस वी बी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। और यहीं से आपको मिलेगा, अगर आप देखें यहाँ से आप ई की वैल्यू क्यू ई, यहाँ पे क्यू ई है ये, या फिर आप यहाँ पे E इज इक्वल टू वी भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्यू वी भी लिखा गया है। यहाँ पे Q कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा E इज इक्वल टू वी बी, या फिर V इज इक्वल टू ई बाई बी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं इफ़ V इज इक्वल टू ई बाई बी, अगर ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होगा यहाँ पे, बट इफ़ दिस इज द केस, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 4.7, अगर ऐसी केस है तो ये जो पार्टिकल है ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता रहेगा। क्यों करता रहेगा? क्यों, देखिए मान लीजिए कि ये कोई पार्टिकल है, इस पे 2 फोर्स लगे हैं, एक इधर लगा है और एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, F1 और F2, और ये पार्टिकल इधर चल रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। अब अगर ये F1 F2 इक्वल हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0, मतलब ये दोनों फोर्स हैं ही नहीं एक्चुअल में, या फिर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। तो ये इस ऑब्जेक्ट की मोशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक ही, सिर्फ सपोज F1 प्रेजेंट हो तो ये पार्टिकल ऐसे ट्रेवल करने लगेगा, सिर्फ F2 प्रेजेंट हो तो ये पार्टिकल ऐसे ट्रेवल करेगा। बट अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं और दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं और अपोजिट में डायरेक्शन में तो है ही है, तो ये स्ट्रेट लाइन में ही चलता रहेगा। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी v पे इन फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। उस केस में आप F1 इज इक्वल टू F2 लिख सकते हैं। तो F1 इज इक्वल टू F2 लिखेंगे तो इसका मतलब आप लिखेंगे QE इज इक्वल टू QVB, ठीक है। आप QE इज इक्वल टू QVB लिखेंगे और उस केस में Q और Q कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा V इज इक्वल टू E अपॉन B। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस कंडीशन कैन बी यूज टू सेलेक्ट चार्ज पार्टिकल ऑफ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी out of a beam containing charges moving with different speeds irrespective of their charge and mass. The crossed electric and magnetic field therefore serve as a velocity selector. Only particle with speed E upon B pass undeflected through the region of crossed field. Okay, this method was employed by J.J. Thomson in 1897 to measure the charge to mass ratio E upon m of an electron. Okay, this principle is also employed in mass spectrometer. This line is very important. So the principle of mass spectrometer is that the ratio of electric field and the magnetic field applied in that spectrometer is equal to the speed of the charge particle moving through the spectrometer. ओके, तो ये है। अब स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है अगर इसकी बात करें, स्पेक्ट्रोमीटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट द चार्ज पार्टिकल्स यूजुअली आयंस अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज टू मास रेशियो। ओके, so this one is the velocity selector. I hope you understand, student. This is very important topic for examination, so please revise this topic many times, and with revision you will understand the concept more deeply. Okay, and try to solve questions based on this topic. At least 10 questions are compulsory for each topic for your proper understanding of the concept of the topic. Now let us start the topic that is known as cyclotron. So student, let me give you some basic information about cyclotron.
So you can see here the cyclotron is a machine to accelerate charged particle or ions to high energies. So this one is a machine and it is used to accelerate charged particle. Okay, now it was invented by E.O. Lawrence and M.S. Livingston in 1934 to investigate nuclear structure. So this was invented by Lawrence and Livingston in 1934, and the purpose of invention of this device is to study or investigation of nuclear structure. Okay, so this is a machine and it is used to accelerate charged particles or ions, since ions are also charged particles, since they are charged to high energy. Okay, so I hope you understand basic use of this machine and why it was invented and who invented the cyclotron. Students, the cyclotron uses both the electric and magnetic field in combination to increase the energy of the charged particle. So in this machine there is use of electric and magnetic field both, and they are crossed in this machine. The structure and the working of this machine, that is known as cyclotron, we will study tomorrow. Students, there is a homework for you. Try to study about cyclotron, and then if you after that if you see the video, this will be more beneficial for you, and try to draw the basic structure of this cyclotron which is given in your book. Okay, and try to revise the topics, because in this again there is use of cross electric and magnetic field. Cross means they are perpendicular to each other. Okay, so hope you understand today's concept and be ready for the topic cyclotron tomorrow. Okay, thank you for watching.